Hello students, today we'll be doing chapter 5, The Happy Prince from your book Moments, and this story has been written by Oscar Wilde, and it's a very beautiful story. You are really going to like it. So let's start. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Sapphires are kind of blue stones, and ruby is a red stone. So you see, Happy Prince was not a human being. He was actually a statue. So here you can see Happy Prince statue. So Happy Prince was a statue, right? So he was all covered with gold. So this entire statue was covered with the thin layers of gold. This covering the of anything with the thin layer is called gilded. So here is the word, right? You will come to know. So why did he want to part with all the gold that he had? Now you see, this statue was alive. It had a heart inside it which was alive, and this heart was quite kind. So now this Happy Prince wanted to give all his gold, his sapphire, and his ruby to the poor people living in his city, right? So why did he want to part with? Note down the word part with. Part with is uh, अपनी चीज किसी को दे देना. तो वो अपना सोना और अपने जो प्रेशियस स्टोन्स थे, सफायर एंड रूबी, लोगों को दे देना चाहता था. क्यों? आओ अब हम जानते हैं. High above the city and on a tall column stood the statue of the Happy Prince. So you see, this Happy Prince statue was on a column, tall column. It was very tall. From here, the statue of the Happy Prince could see the entire city. So you see, he was gilded. I told you the word gilded. Gilded means covered with a thin layer of gold, all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires. आंखों की जगह पे उसके sapphires लगे हुए थे, जो कि blue stones होते हैं. And a large red ruby glowed on his sword hilt. Hilt is the handle of the sword. Sword means तलवार. वहाँ हैंडल के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड रूबी लगा हुआ था. And sapphire and ruby, they are very precious, that is expensive stones. So one night there flew over the city a little swallow. So here you see, एक रात उस शहर के आसमान में से एक swallow पंछी गुजरा. ये देखो. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. You see, उसके जो साथी थे, fellow birds, they had flown to Egypt 6 weeks ago. So this swallow had decided to stay back at his native land, but then he decided that he should also move to Egypt. But he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो उसने भी इजिप्ट जाने के लिए अपना फैसला किया. So all day long he flew, and at night time he arrived at the city. सारा दिन वो उड़ता रहा अपनी जगह से जहाँ वो रहता था, और रात के समय वो उस शहर के ऊपर से गुजरा जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था. तो उड़ते उड़ते उसने ये सोचा, वेयर शैल आई पुट अप. पुट अप मीन्स वेयर शैल आई स्टे फॉर नाइट. ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशंस. तो हो सकता है जिस शहर के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मेरे रहने का इंतज़ाम हो. So then he saw the statue on the tall column, and as he was looking for a place to stay for night, his eyes fell on the statue. And I will put up here. He thought कि मैं यहीं पे रहूँगा. He cried, it's a fine position with plenty of fresh air. यहाँ पे मैं उतर के बैठ जाऊँगा, और मेरे को यहाँ पे काफ़ी फ्रेश एयर भी मिलेगी, और मैं अपनी नाइट स्पेंड कर लूँगा. So he alighted. Alighted means so he got down just between the feet of the Happy Prince. So you can see here, जो स्टैचू के 2 फीट है, उसने यहाँ इनके नीचे रात गुजारने का फैसला किया. So I have a golden bedroom, he said. तो उसने कहा, wow, the statue is made up of gold. So I am in a kind of a bedroom which is made up of gold. He said softly to himself as he looked around. जो ही उसने यहाँ पे बैठ के इधर उधर देखा,
तो उसने ये अपने आप को कहा, and he prepared to go to sleep. And then, you see, after having spent some time observing the surroundings, he decided to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. तो ज्यों ही वो सोने लगा, अपने पंखों को फैला के, अपना सिर पंखों के नीचे छुपा के वो सोने लगा, उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी. What a curious thing, he cried, and the bird thought maybe it was going to rain. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. पंछी ने ये सोचा, अरे ये कैसी बात है, आसमान में कोई बादल नहीं है, सितारे साफ नजर आ रहे हैं और फिर भी बरसात हो रही है. Then another drop fell. तब उसके ऊपर एक और पानी की बूंद गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. So he complained, what type of statue it is? It doesn't keep the rain off. ये मेरे को रेन से नहीं बचा सकता. I must look for a good chimney pot. Now, so the swallow thought that he must go to another place, particularly a chimney, and he determined to fly away. और उसने अभी अपना मन बनाया ही था उड़ने के लिए. But before he had opened his wings, a third drop fell. तभी जब वो उड़ने लगा था, तीसरी एक और बूंद उसके ऊपर गिरी. And he looked up, और उसने देखा, and saw, what did he see? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with the tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और ज्यों ही swallow ने ऊपर देखा, उसने क्या देखा कि प्रिंस की सुंदर सी ब्लू आंखों में आंसू हैं, और वो आंसू लगातार बह रहे हैं, उसकी गोल्डन चीक से बहते हुए नीचे गिर रहे हैं, और वो आंसू उसके ऊपर गिर रहे हैं. और चांदनी रात में प्रिंस का गोल्डन चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था, और सुंदर भी लग रहा था, और उसको उस चेहरे को देख के उसके मन में बड़ी दया आई. मैंने जैसे कि बताया कि उसका चेहरा देखते ही उसके माइंड में दया आ गई. उसने पूछा, हु आर यू? ही सेड, I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. अरे, you are a prince, you are so beautiful, you are so rich, and still you are crying. See, तुमने मेरे को भिगो दिया. Drenched me means you have made me wet. So this was the prince's reply. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My countries called me the happy prince. Sorry, not countries, my courtiers. Note down the word courtiers means the people present in a king or prince court. मतलब उसके राज दरबार में जो लोग थे. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. So you see, this prince reply is very, very touching. So prince ने कहा, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक इंसान का दिल था, तब मेरे को नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. क्यों? क्योंकि मैं एक महल में रहता था, जहां पे दुख नहीं होता, जहां पे दुख को अंदर आने नहीं दिया जाता. और जो मेरे राज दरबार के लोग थे, वो सारे मेरे को हैप्पी प्रिंस कहते थे, दैट इज खुश राजकुमार. एंड सच में खुश तो मैं बहुत था, और मैं ऐसे जीता रहा, खुशी में एंजॉय करता रहा, और एक दिन मेरी डेथ हो गई. अब क्योंकि मैं मर गया हूँ, और उन्होंने मेरे स्टैचू को इस बड़े से टॉल पिलर के ऊपर रख दिया है, और यहाँ से मैं हर दिन, हर रोज, हर पल जो शहर की गंदगी है वो देखता हूँ, और शहर की गरीबी देखता हूँ. उसको देख के मेरा दिल दुख से भर जाता है. मिजरी मीन्स दुख. चाहे मेरा दिल लेड से बना हुआ है, लेड इज ए यू सी मटीरियल, ठीक है, उसका बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में इतना दर्द है कि मैं रोता रहता हूँ, मैं रोता रहता हूँ. Swallow was surprised. What? Is he not solid gold? क्या तुम्हारा दिल सोने का नहीं बना हुआ है? Said the swallow to himself. So he was too polite to make any personal remarks. So actually ये जो कहा ना कि क्या इसका जो दिल है सोने का नहीं है,
ये उसने अपने आप को कहा, क्योंकि वो ऐसा बोल के हैप्पी प्रिंस को हर्ट नहीं करना चाहता था। तो हैप्पी प्रिंस अब और आगे बता रहा है, फार अवे continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house। यहां से मैं देख रहा हूं कि दूर एक गली में एक छोटा सा घर है, बड़ा गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उस घर की एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल, और इस खिड़की से मैं देख रहा हूँ एक औरत एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वोन, शी इज लुकिंग क्वाइट वीक। हर फेस इज थिन एंड वोन, वोन यहाँ मीन्स वीक। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसको जो हाथ है वो खुरदरे से है, मतलब वो उन हाथों से बड़ा काम करती है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, यस। और उसके हाथ क्यों ऐसे हार्ड से हैं? क्योंकि उन हाथों में बार बार सुइयां चुभती हैं। फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस, नोट डाउन द वर्ड सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस मीन्स अ लेडी टेलर, right? A lady tailor who sews the suits of other women. So she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor। और वो जो राजकुमारी है या जो रानी है, उसके गाउन जो कि सैटिन का बना हुआ है उसके ऊपर कढ़ाई कर रही है, राइट। और ये उसने एक स्पेशल ओकेजन पे डालना है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो कि राज दरबार में नेक्स्ट डांस पार्टी है उसमें उसने डालना है। सो इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी कमरे में एक बेड पे उसका एक छोटा सा लड़का सो रहा है, लेटा हुआ है, और वो बीमार है। ही हैज ए फीवर, उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मम्मी से ऑरेंजेस मांग रहा है खाने के लिए। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। लेकिन उसकी गरीब माँ के पास उसको देने के लिए सिर्फ नदी का पानी है, और ऑरेंजेस के लिए वो गरीब बीमार लड़का रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट। स्वॉलो, वो तो हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को रिक्वेस्ट की कि स्वॉलो पंछी मेरी हेल्प करो, ये जो मेरी तलवार के ऊपर रेड रूबी लगी हुई है ये जाके उसको दे दो। माई फीट आर फासन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मैं हिल नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ। स्टैचू वहीं पे फिक्स होता है। तो मैं अगर जिंदा होता तो मैं ये अपना लाल रूबी स्टोन इस गरीब लेडी टेलर को दे देता, ताकि वो थोड़ा इसको बेच के पैसे उसके पास आ जाते और वो अपने बेटे को ऑरेंजेस खिला सकती। तो मैं तो ये काम नहीं कर सकता, स्वॉलो तुम मेरी ये हेल्प कर दो। काइंडली टेक माई रेड रूबी स्टोन एंड गिव इट टू द लेडी टेलर सो दैट शी कैन improve her financial condition a little bit। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा, पर मुझे तो इजिप्ट जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सॉरी टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, soon they will go to sleep। So swallow replied, no, no, I am bound for Egypt। My friends have already gone so much ahead of me, they are flying up and down the Nile। Nile here is the river which flows through Egypt, a very famous river, and they are talking to large lotus flowers। Lotus flowers are कमल के फूल, and soon they will go to sleep, और फिर वो वहां सो जाएंगे, मुझे भी उनके साथ पहुंचना है। So the prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger। So the happy prince requested the swallow to just spend another night with him and be his messenger। So the boy is so thirsty and the mother so sad, he said। So happy prince ने swallow को कहा, देखो वो लड़का कितना दुखी है, कितनी उसको प्यास लगी है, और उसकी मम्मी बेचारी कितनी उदास है। वो अपने बेटे को ऑरेंजेस खिलाना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। I don't think I like boys, answered the swallow। I want to go to Egypt। तो swallow ने साफ कह दिया, मुझे ये लड़के वड़के नहीं अच्छे लगते, मुझे तो बस इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry। तभी swallow की बात सुन के happy prince और उदास हो गया। तो उसकी उदासी देखकर swallow के दिल में भी
तरस आ गया हैप्पी प्रिंस के लिए. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. So the swallow agreed. Swallow ने कहा यहाँ हैप्पी प्रिंस तुम्हारी यहाँ ऊंचाई पे जहाँ पे तुम हो, इस कॉलम में जहाँ पे तुम रखे गए हो बहुत ऊंचा है, ठंडी हवा चलती है, रात को बहुत ठंड हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कहने पे एक रात यहाँ पे रुक जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा. Okay, thank you, little swallow, said the prince, and the happy prince became very happy and he thanked the little swallow. So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो जैसा कि हैप्पी प्रिंस ने उसको कहा था, उसने जो तलवार का हैंडल था उसमें से ग्रेट रूबी वो रेड स्टोन निकाला और अपनी चोंच में लेके उड़ने लगा उस गरीब लेडी टेलर के घर की तरफ. और वो उड़ता हुआ घरों के ऊपर से उड़ता हुआ, शहर के घरों के ऊपर से उड़ता हुआ वो उसकी तरफ जाने लगा. He passed by the cathedral tower. Note down cathedral. Cathedral here is the town's church. तो वो टाउन के जो चर्च का टावर था उसके पास से गुजरा. वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. और उस टावर पे एंजल्स के स्टैचूज बने हुए थे. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. और तभी वो महल के पास से गुजरा और महल के अंदर पार्टी चल रही थी. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. और जो महल की एक बैल्कनी थी, छत पे एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ खड़ी हुई थी, उससे बातें कर रही थी. और ये बात की उसने, I hope my dress will be ready in time for the state ball. और वो क्या बात कर रही थी कि वो अपने लवर को बता रही थी कि मैं एक नई ड्रेस सिलवा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वो जो नई ड्रेस है वो जो स्टेट डांस पार्टी है, जो बहुत बड़ी डांस पार्टी है, उससे पहले रेडी हो जाएगी. She said, I have ordered flowers to be embroidered on it. और मैं उसके ऊपर जो फ्लावर्स है उसकी एम्ब्रॉयडरी करवा रही हूँ. But the seamstresses are too lazy. But the seamstresses are so lazy. लेकिन जो लेडी टेलर्स हैं वो बड़ी सुस्त हैं. So बेटा you must note down here. This is the same girl, princess, whose dress the seamstress was embroidering on. That poor seamstress was embroidering on, whose son was lying ill. So you see how in the same world there are two types of scenes. On one hand, we saw a poor lady embroidering a princess dress, and on the other hand, the princess whose dress she was embroidering on, she was so happy standing on the roof of the palace wall. She was talking to her lover. In the same world, there are different types of people with different states of minds. So he passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. तभी जो swallow था वो रिवर के ऊपर से गुजरा उड़ता हुआ, उसकी चोंच में वही रेड रूबी है. और उसने देखा नीचे जो नदी है उसमें जो शिप्स हैं या जो बोट्स हैं उसके मास्ट मीन उसके पोल्स के ऊपर लैंटर्न्स लगी हुई हैं. So at last he came to the poor woman's house and looked in. So finally he reached that poor seamstress house and he looked in. So the boy was tossing feverishly on his bed. और उसका लड़का बेचारा बड़ा बेचैन था. उसको बड़ा हाई टेम्परेचर था और उसको वो इधर उधर साइड्स टर्न कर रहा था. एंड द मदर हैड फॉलन asleep. और जो उसकी मम्मी थी, जो वो लेडी टेलर थी, वो बेचारी कढ़ाई करते करते ही चेयर पे सो गई थी. शी वॉज सो टायर्ड. सो इन ही हॉप. और फिर वो विंडो के जरिए से जो स्वॉलो था वो कमरे के अंदर चला गया. एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल. और उसने जो वो रेड रूबी था वो बड़े प्यार से उस टेबल पे रख दिया जहां पे वो कढ़ाई कर रही थी. और उसी टेबल पे उसकी थिम्बल पड़ी थी. नोट डाउन द वर्ड थिम्बल. नाउ व्हाट इज थिम्बल? आई जस्ट टेल यू. So here is the meaning of thimble: a small metal or plastic object that you wear on the end of your finger to protect it when sewing. So thimble is a bit a kind of
protective equipment that tailors wear on their fingers when they are doing kadhai or when they are sewing something, in order to save their fingers from getting hurt with the needle they are using. So after placing the red ruby on the table, right, where uh, the lady tailor was sitting and where she had fallen asleep, so then he flew gently round the bed. So then he quietly, you see, very softly flew around the bed on which the ill boy was lying. So with his wings he fanned the boy's forehead. So you see, उसने अपने विंग्स के साथ उस बॉय को हवा दी. तो बॉय ने कहा, हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. तो जब भी उसको अच्छा फील हुआ हवा को फील करके, तो बॉय ने सोचा, ओ मैं अच्छा हो रहा हूँ. एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और फिर वो आराम से सो गया. डिलीशियस मीन्स ब्यूटीफुल डीप स्लीप. स्लम्बर हियर मीन्स स्लीप. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. So you see, after delivering the red ruby to the seamstress who was in dire need of money, whose son was lying ill on the bed, the swallow flew back to the prince. Swallow ने वो जो रूबी था वो seamstress लेडी टेलर को दे दिया, और वहाँ से फिर वो उड़ के वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया. और it is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. So you see here, uh, the swallow said, wow, after doing a good deed, I am feeling so happy, I am feeling so good, though it is cold, but still I feel so warm. So here, beta, you see, the author wants us to focus on the fact that when we do good deeds, we feel good. So doing good deeds is very important in our life. So that is because you have done a good action, said the prince. हैप्पी प्रिंस को पता था कि वो अच्छा क्यों फील कर रहा. उसने कहा, तुम्हें अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. So you see, Swallow started thinking about this, and the moment he started thinking, he fell asleep because thinking always made him feel sleepy. So when day broke, he flew down to the river and had a bath. अगले दिन जब दिन हुआ, सुबह हुई, और स्वॉलो रिवर में गया नहाने के लिए. टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और नहाते हुए उसने कहा, यार आज मुझे हर हालत में इजिप्ट की तरफ उड़ना है. मेरे दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी एक रात ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड कर दी है प्रिंस के कहने पर. एंड ही वॉज इन हाई spirits at the prospect. And so you see, the swallow was really excited to fly to Egypt. So here you see, beta, the picture. Here you can see the seamstress here, right? And here you can see the ruby line, and here is the thimble. Thimble is something that is put on the fingers to avoid, you see, the pricking of the needle. And here the boy, her ill boy, is lying. Here she is sleeping, and while she was sleeping, the swallow kept the ruby here and then flew here, made the boy fall asleep, and then flew back. So you see, he visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. So that night, that day, before he had to fly to Egypt, swallow ने सारे शहर का की साइट सीइंग की, मतलब वो हर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पे गया. और वो जो चर्च स्टीपल था, चर्च स्टीपल, नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज अ चर्च स्टीपल. So steeple is a tall pointed tower on the roof of a church, often with this spire on it. So just wait, I show you the picture. So beta, note down this entire area. You see this arrow? This is a steeple, and this is spire. This entire area is steeple. Here is the church tower,
and from here to here it is steeple, and from here to here it is spire. So you see, the swallow sat on the church steeple. So when the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. So you see, जब चांद निकला रात को, तो वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास गया उसको गुड बाय कहने के लिए। तो उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई इजिप्ट में काम तो नहीं है? मैं जा रहा हूँ। So Swallow asked the happy prince if he had any errand in Egypt. He would happily do, because he was leaving now for Egypt. And what did the happy prince say at that time? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो हैप्पी प्रिंस ने कहा, स्वॉलो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक रात मेरे साथ और ठहर जाओ। तो swallow said, I am waited for in Egypt. Answered the swallow. Look, Ratham, my friends are waiting for me. The prince requested, Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. तो प्रिंस ने कहा कि स्वॉलो, मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ एक रात और। अभी दूर मैं देख पा रहा हूँ एक गैरेट में। नाउ नोट डाउन द वर्ड गैरेट। गैरेट is a room, often a small, garret, dark, unpleasant one at the top of a house. So the other synonyms are attic, loft. So उस small room में एक नौजवान लड़का है और वो एक चेयर और टेबल पे बैठा है। टेबल पे कुछ पेपर्स हैं, राइट, और उसके पास ही एक bunch of flowers पड़ा है। Violets, बेटा, violets are flowers. Let me show you what type of flowers. Here you can see these are violet flowers, right? Have a look at them. These are called violet flowers. So उस नौजवान के टेबल पे जो वायलेट्स का गुलदस्ता पड़ा है वो मुरझा गया है। Withered means no down, मुरझा जाना। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. और उस लड़के के हेयर ब्राउन है और अच्छे हैं, एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके जो होंठ हैं वो अनार की तरह लाल है, एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और उन आंखों में सपने हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। एक्चुअली दैट यंग मैन इज अ प्ले राइट, अ राइटर, right? He writes plays and he is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो भी गरीब है, उसे भी बहुत ठंड लग रही है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, और उसके छोटे से कमरे में जहाँ पे आग जलाई जाती है वहाँ पे आग नहीं जल रही है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और उसको भूख भी बहुत लगी हुई है। ठंड और भूख में उसका बुरा हाल है और इसीलिए वो लिख नहीं पा रहा है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. So you see, swallow basically had a good heart. So listening to the happy prince, he decided that he would wait for one more night and help according to the instructions of the happy prince. So he asked if he should take another ruby to the young playwright. तो प्ले स्वॉलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या आपके पास कोई और रूबी है जो कि मैं प्ले राइट को दे दूं। प्ले राइट, नोट डाउन द वर्ड प्ले राइट। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। लेकिन प्रिंस ने कहा, बड़े दुख की बात है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रूबी थी। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, और उन आंखों में बड़े ही कीमती सफायर लगे हुए हैं। सफायर्स आर ब्लू stones which were brought out of India 1,000 years ago, and these rare sapphires were brought from India
He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. So here you can see beta the happy prince swallow sitting, and here in the eyes he has beautiful sapphires, right? And here you can see the swallow has taken out one of the sapphires from happy prince eyes. So happy prince ने उसको कहा कि swallow मेरी आंखों में से एक सफायर निकाल लो और ये उस प्ले राइट को दे दो. Pluck it out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. और वो इसको बेच देगा जूलर को, और वो जो पैसे उसको मिलेंगे उससे वो आग के लिए लकड़ी खरीद लेगा, खाना खरीद लेगा. So dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. तभी swallow को पता था कि अगर उसने उसकी आंख निकाली तो उसको पेन होगी. उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे तुम अंधे हो जाओगे. और वो रोने लग पड़ा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So happy prince ने कहा प्लीज swallow वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's carrot. और swallow ने वही किया. Here you can see उसकी एक आंख निकाल ली अपनी चोंच के साथ, और उस swallow उस सफायर को लेके वो उस नौजवान राइटर की तरफ उड़ गया. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और उसके कमरे में एंटर होना बड़ा आसान था. एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि नौजवान के जो जिस कमरे में रह रहा था उसकी छत में एक होल था. थ्रू दिस ही डार्टेड, और उसके अंदर से वो चला गया. एंड केम इन टू द रूम. सो द यंग मैन हैड हिज हेड बेरिड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. और जब स्वॉलो उसके कमरे में एंटर किया तो जो नौजवान राइटर था वो बहुत ही दुखी था. उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, मे भी रो रहा था. तो इसी दौरान उसको जो स्वॉलो उसके कमरे के अंदर आया, उसके उड़ने का शोर सुनाई नहीं दिया. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स. और जब थोड़ी देर बाद उस नौजवान ने अपना सिर ऊपर उठाया तो वो हैरान रह गया. उन मुरझाए हुए वायलेट्स फ्लावर्स के ऊपर एक ब्लू कलर का जेमस्टोन पड़ा था जो कि बहुत ही कीमती था. So let's see the reaction of that young writer. He said in surprise, "Oh, I am beginning to be appreciated," he cried. "This is from some great admirer. Now I can finish my play." तो वो देख के बड़ा खुश हुआ. कहता है इसका मतलब मेरे प्लेस लोग लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये किसी एक एडमायरर ने मेरे को एज ए गिफ्ट दिया है. चलो अच्छा है, मैं इसको बेच के अब अपना प्ले फिनिश कर लूंगा. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. So the next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. "I am going to Egypt," cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. So you see, फिर ऐसे ही एक रात बीत गई. अगले दिन स्वॉलो ने फिर शहर का एक राउंड लिया उड़ते उड़ते. फिर और उसने हार्बर देखा. हार्बर बेटा वी कैन से बंदरगाह, पोर्ट, जहाँ पे शिप्स बोट्स आते हैं और फिर चले जाते हैं. तो जब वो हार्बर पे गया उसने देखा काफी शिप्स खड़े थे और बोट्स खड़ी थी. तो एक शिप के मास्ट के ऊपर जाके बैठ गया. नोट डाउन द वर्ड हियर, मास्ट. मास्ट इज द पोल ऑन ए शिप, अ टॉल पोल. एंड लार्ज वेसल हियर मींस लार्ज शिप. और वो उस लार्ज शिप के पोल पे जाके बैठ गया और काफी देर तक वो जो सेलर्स थे जो जहाज पे काम करते हैं उनको काम करते हुए देखता रहा. और वहां बैठा बैठा वो सोच रहा था, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, अब तो मैं जरूर इजिप्ट जाऊंगा. क्राइड द स्वॉलो. और लेकिन किसी ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया. और जब फिर रात हुई, चांद आसमान में आया, वो फिर उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. तो शाम को रात को उसके पास जाके कहने लगा, प्रिंस अब मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं, ठीक है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. तभी प्रिंस ने फिर उसको रिक्वेस्ट की कि स्वॉलो प्लीज एक रात
मेरे लिए और ठहर जाओ। तो स्वॉलो ने कहा, इट इज विंटर, आंसर द स्वॉलो। देखो हैप्पी प्रिंस भाई, बहुत ठंड हो चुकी है, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और स्नो फॉल होगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम। कहता और इजिप्ट में ठंड नहीं पड़ती, इजिप्ट में अब मौसम बड़ा अच्छा है, सूरज की गर्मी है, और पेड़ भी आ, अच्छे खिले हुए हैं, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो अपने स्वॉम्प्स में, अपने मड में सारा दिन सुस्ती से आराम करते हैं इधर उधर देखते हुए। तो हैप्पी प्रिंस ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, इन द स्क्वेयर बिलो, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा, देखो नीचे चौरस्ते पे एक छोटी सी लड़की खड़ी है जो मैच स्टिक्स बेचती है। मैच स्टिक मीन्स माचिस। और उसकी सारी माचिस जो है वो नीचे गटर में गिर गई हैं, खराब हो गई हैं, स्पॉइल्ड हो गई हैं, और उसका पापा घर में वेट कर रहा है कि वो मैच स्टिक्स को बेच के जो पैसे कमाए वो घर लेके आए। और वो बेचारी छोटी सी रो रही है क्योंकि अब वो घर पैसे लेके नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी सारी मैच स्टिक्स खराब हो चुकी हैं। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर। देखो इतनी ठंड में बेचारी ने शूज भी नहीं पहने हुए हैं, ना ही उसके पास स्टॉकिंग्स हैं। बेटा ये जुराबों की तरह होती है स्टॉकिंग्स, लॉन्ग सॉक्स, और उसके जो हेड है वो भी अनकवर्ड है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। स्वॉलो, मैं तुम्हें से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरी दूसरी आंख है जिसमें कि सफायर है उसको भी निकाल लो, और वो निकाल के अपनी चोंच में ले जाओ और उस लड़की को दे दो ताकि उसके पापा उसको पीटे ना। तो स्वॉलो ने कहा, आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। कहता ओके, मैं तुम्हारे साथ रह तो जाता हूँ, लेकिन जो तुमने कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल लूँ, वो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. Happy Prince ने कहा, please swallow, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. So उसने वही किया, swallow ने उसकी दूसरी आंख भी निकाल ली प्रिंस की, और उस सफायर को अपनी चोंच में लेके उसकी तरफ उड़ चला, और उसके पास जाके वो उसके आसपास गोल गोल सर्कल्स में घूमने लगा, और ऐसे करते करते उसने उसके हाथ में वो जो ब्लू सफायर था वो रख दिया। राइट? What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. So you see, seeing that precious blue stone on her palm, she became very happy, and हंसते हुए वो घर चली गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. And you see, swallow flew back to the happy prince, and जब वो उसके पास आके बैठा, उसने उसको कहा, प्रिंस, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम अंधे हो गए हो। अब तुम्हें कौन बताएगा ये जो शहर का हाल है, या जो शहर में क्या चल रहा है। नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. So you see, Happy Prince was a very good human being, rather a good statue. So he requested him to continue his journey to Egypt. So Swallow also was a very good bird. So Swallow said, no, I will stay with you always. And he slept at the prince's feet. So all the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. So next day Swallow sat on the prince's shoulder और उसको कहानियाँ सुनाई उसने, वो सारी कहानियाँ जो उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देखी थी या सुनी थी जब वो वहाँ उड़ के जाता था. So, dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women.
There is no misery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. तभी उसकी कहानियाँ सुन के हैप्पी प्रिंस ने कहा, डियर स्वॉलो, तुम मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते हो, मार्वलस मीन शानदार कहानियाँ सुनाते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे शानदार अगर कोई चीज़ है तो वो है आदमियों और औरतों का दुख, राइट। और कोई भी जो सीक्रेट है वो जो दुख से बड़ा नहीं है। मतलब जिंदगी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है दुख। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है जो है वो है दुख। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, मेरे डियर फ्रेंड्स वॉलो, और उड़ के मेरे को ये बताओ कि तुम्हें शहर में उड़ते हुए क्या नजर आया, और फिर वो मेरे को बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. So जैसा कि प्रिंस ने कहा था, स्वॉलो शहर के ऊपर से उड़ा। उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में पार्टीज कर रहे हैं, खुश हैं, while the beggars were sitting at the gates, और जो beggars थे वो उनके गेट्स में बैठे थे इस होप में कि वो उनको कुछ खाने को देंगे। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. फिर वो उन गलियों में गया जहाँ पे अंधेरा था, और उसने देखा कि उन गलियों में छोटे छोटे घरों में बच्चों के वाइट फेसेस हैं, मतलब ब्लडलेस फेसेस हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। स्टार्विंग मीन्स भूखे, जो कि बेचारे बाहर देख रहे हैं। लिस्टलेसली मीन्स उदासी से, कि कोई उनको आएगा, कोई उनको खाना देगा। सो अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म्स। और फिर उसने ब्रिज के नीचे देखा, दो लड़के लेटे हुए थे, छोटे से लड़के, एक दूसरे को बाहों में लेके, इसलिए क्योंकि ठंड बहुत थी और वो एक दूसरे को के साथ ऐसे लेट के अपने आप को ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। और वो कह रहे थे, हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन। और तभी जो वॉचमैन था, जो पहरेदार था, जो राउंड ड्यूटी पे था, उसने उनको भगा दिया डांट के कि ये यहाँ पे नहीं सोना तुम्हें। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन। और फिर वो बेचारे वहाँ से उठ के बाहर चले गए, ब्रिज ब्रिज से परे चले गए, और बरसात हो रही थी और उसमें गीले होने लगे, और इससे उनकी ठंड और बढ़ गई। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तो शहर के ऊपर से उड़ के स्वॉलो ने जो जो देखा उसने वो प्रिंस को बता दिया। तो प्रिंस ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। सो यू सी, उसने स्वॉलो को रिक्वेस्ट की, प्रिंस ने, कि स्वॉलो देखो, इस दुनिया में बड़ा दुख है और मैं इस दुख को कम करना चाहता हूँ। तुम क्या करो, जो अब मेरे ऊपर सोने की परतें चढ़ी हुई हैं उन परतों को धीरे धीरे उतारो, राइट, और जो भी गरीब है, जो भी ज़रूरतमंद है, उसको ये दे दो, राइट। मैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे को ये नहीं चाहिए, और दुनिया वाले ये सोचते हैं कि जिसके पास जितना सोना होगा वो उतना ही खुश होगा। ये गलत है। सो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ। तो स्वॉलो ने वैसा ही किया, अपनी चोंच से धीरे धीरे उसका जो सोने की परतें थी, लेयर्स थी, उनको उतारा। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब जब उससे उसकी सोने की सारी कवरिंग उतर गई, तो अब जो नीचे था वो डल सा था हैप्पी प्रिंस। तो वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैट्यू था वो बहुत ही भद्दा सा लगने लगा। सो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। और वो जब भी सोना उतारता वो गरीबों को दे देता। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। और जिस जिस गरीब को भी वो सोना मिला, वो एक तो खुश हो गए, और ऊपर से उसको बेच के उन्होंने अपने लिए खाना वगैरह खरीदा, अपने लिए घर वगैरह बनवाया, और वो अब हेल्दी होने लगे और वो हंसने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। अब वो हंसने लगे, खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। और वो खुश थे क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए खाना था। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट।
अच्छा, अब ठंड का मौसम आया और पहले तो स्नो पड़ी, फिर उसके बाद फ्रॉस्ट पड़ी। फ्रॉस्ट होती है बेटा, कोरा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको। मतलब सब कुछ जम जाता है, ओस की बूंदें जम जाती हैं बाहर, जो झीलों में, पॉन्ड्स में, नदियों में पानी होता है उसकी अपर लेयर जम जाती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। इट मीन्स वेरी कोल्ड। So the streets looked as if they were made of silver. So you see, I have told you already, whatever liquid is lying anywhere in the cold months after the snow, it gets turned into ice. तो सब गलियों में जो भी था वो सब जम गया था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सब ने अपने सर्दियों के कपड़े डाल लिए थे। फर्स मीन्स एंड क्लोथ्स मेड अप ऑफ expensive animal skins, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. और लड़कों ने भी वुलन कैप्स डाली थी ठंड से बचने के लिए, और फिर वो स्केटिंग करते थे उस आइस पे। सो द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। बेटा यू मस्ट रिमेंबर हियर कि the little swallow was going to Egypt in order to be safe from the winter, but he had decided to stay with the happy prince. So staying with the happy prince means living in a very cold environment, but he would not leave the prince. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं गया। he loved him too well, क्योंकि अब वो उससे बहुत अटैच्ड हो गया था। he picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वो खाने के लिए क्या करता था, थोड़ी दूर पे एक बेकर की शॉप थी, बेकरी की शॉप, तो जो भी उसको वहाँ से खाने को मिल जाता वो उससे खाकर जीवित रहता था, और अपने आप को वार्म रखने के लिए वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन ठंड बढ़ती गई, और अब लिटिल स्वॉलो को पता था कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो गई। एक दिन तो मतलब उसे बहुत ठंड लगने लगी, और अब उसे पता लग गया वो मरने वाला है, तो वो किसी तरह हिम्मत जुटा के हैप्पी प्रिंस तक उड़ के गया और उसके शोल्डर पे बैठ गया और उसको कहने लगा, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। कहता, प्रिंस मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं मरने से पहले तुम्हारे हैंड को किस करना चाहता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस समझा कि ये शायद इजिप्ट जाने के लिए कह रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो हैप्पी प्रिंस समझा कि वो शायद इजिप्ट जाने के लिए उसको गुड बाय कहने आया है, लेकिन हैप्पी प्रिंस को नहीं पता था कि अब उसके अंतिम सांस ही बचे थे। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा, नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो लिटिल स्वॉलो, तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुम मेरे कहने पे यहाँ रुक गए। मैं भी तुमसे बहुत अटैच्ड हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे हैंड पे किस मत करो, तुम मेरे को मेरे लिप्स पे किस करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वॉलो। तो स्वॉलो ने बताया, नहीं हैप्पी प्रिंस, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी उड़ सकूं, मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, बस मौत मेरे को लेने आ गई है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, बस मैं सोने जा रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि जो डेथ है वो भी एक लॉन्ग स्लीप है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और यही कह के बस उसने थोड़ा सा हैप्पी प्रिंस को किस किया, और किस करते ही वो मर गया, और उसकी जो बॉडी थी हैप्पी प्रिंस के फीट में, पाँव में गिर गई। एंड एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और ज्यों ही हैप्पी प्रिंस को पता लगा कि वो बेचारा मर के गिर गया है उसके पाँव में, हैप्पी प्रिंस को बहुत दुख लगा, और हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था उसके स्टैचू के अंदर वो भी टूट गया, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। सो द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। सच तो ये था कि जो हैप्पी प्रिंस का लेड का बना हुआ हार्ट था वो दो टुकड़ों में बट गया। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि हैप्पी प्रिंस को भी बहुत ठंड लग रही थी
और ऊपर से उसको ये दुख वो सहन नहीं कर पाया स्वॉलो के मरने का. सो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स. तो अगली सुबह जो टाउन का मेयर था वो अपने वर्कर्स के साथ इंस्पेक्शन राउंड पे था, इधर उधर चल रहा था देखता हुआ कि शहर का क्या हाल है. सो एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैच्यू. तो ज्यों ही मेयर जो पिलर था जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था उसके नीचे से गुजरा, उसने ऊपर देखा और ऊपर देखते ही वो हैरान हो गया. डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. उसने कहा, ओ माय गॉड, सी, देखो हमारे सुंदर से शहर में ये इतना गंदा स्टैच्यू क्या काम कर रहा है, देखो ये कितना गंदा हो गया, पहले तो ये बहुत सुंदर था. हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स who always agreed with the mayor and they went up to look at it. तो जो मेयर के साथ उसके असिस्टेंट्स थे, इंस्पेक्टर्स थे, सबॉर्डिनेट्स थे, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ वाकई जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू वो बहुत बुरा लग रहा है. एक्चुअल में वो वही बात कहते थे जो मेयर कहता था, मतलब देवर यस बॉस टाइप इंस्पेक्टर्स. सो द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड. तो ये मेयर कह रहा है, देखो जो हमने उसकी इतना अच्छा स्टैचू बनाया था उसकी तलवार के ऊपर रेड रूबी लगाई थी वो भी गायब है. हिज आईज आर गॉन, स्टैचू में से जो ब्लू आईज हैं वो भी नहीं है. इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर. ये जो स्टैचू है ये एक बैगर की तरह ही लग रहा है. लिटिल बेटर देन ए बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स. तो टाउन काउंसिलर्स ने भी वही कहा जो मेयर ने कहा. एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कॉन्टिन्यूड द मेयर. मेयर ने कहा और देखो उसके स्टैचू के फीट के पास एक बर्ड की डेड बॉडी भी पड़ी है. वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लामेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर. सो तभी बर्ड की डेड बॉडी देख के मेयर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि प्लीज़ ये अनाउंसमेंट करवाओ कि यहाँ पे कोई बर्ड मरने के लिए अलाउड नहीं है. प्रोक्लामेशन मीन्स अनाउंस्ड. सो यू सी, and the town clerk made a note of the suggestion, and the town clerk who was with the mayor along with his councillors, he noted it down in his diary that birds are not to be allowed to die here in the city, particularly near the statue. So they pulled down the statue of the happy prince. Now you see, the happy prince statue looked so ugly. सो द मेयर डिसाइडेड कि इस स्टैचू को तोड़वा देना चाहिए, यहाँ से सफाई करवा देनी चाहिए. तो उन्होंने उसका स्टैचू तोड़वा दिया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. सो जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली आर्ट्स के, उन्होंने कहा कि नो, क्योंकि अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू सुंदर नहीं लग रहा इसलिए इसको तोड़वा देना चाहिए. सो देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस. तो स्टैचू को वो तोड़ के ले गए और उसको फर्नेस में पिघला दिया. नाउ फर्नेस इज काइंड ऑफ प्लेस वेयर थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन आर मेल्टेड बिकॉज देयर इज एक्सट्रीम हीट, एंड इन आवर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड भट्टी. So what a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. तो जब वो हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को आग में डाल के मेल्ट कर रहे थे, बहुत हाई टेम्परेचर आग में, तो जो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक मिरेकल हुआ है. मिरेकल क्या? फाउंड्री मीन्स द प्लेस वेयर आयरन इज मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. आयरन ओर इज मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स और शीट्स. सो उन्होंने क्या देखा कि भट्टी में, फर्नेस में सब कुछ तो जल गया लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट था वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ. सो वी मस्ट थ्रो इट अवे. सो दे डिसाइडेड टू थ्रो इट अवे. सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वॉज ऑल्सो लाइंग. सो जो वर्कमैन थे फाउंड्री में, उन्होंने हैप्पी प्रिंस के लेड हार्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और उसी कूड़े के ढेर में डेड स्वॉलो की डेड बॉडी भी पड़ी थी. नाउ द सीन इज गॉड्स हेवन. गॉड फ्रॉम हेवन, गॉड अपने स्वर्ग से नीचे देख रहा है
और देख रहा है शहर के कूड़े के ढेर में एक स्वॉलो की डेड बॉडी पड़ी है और दूसरा हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट पड़ा है। गॉड को ये अच्छा नहीं लगा, तो गॉड ने अपने एंजल्स को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। सो गॉड ने अपने एक एंजल को बुलाया और उसको कहा, सुनो, उस नीचे शहर में दो बहुत ही प्रेशियस चीज़ें हैं, वो मेरे पास लेके आओ। सो गॉड का एंजल अपने परों को फैलाए स्वर्ग से नीचे आया शहर की तरफ जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। उसने वहाँ से डेड बॉडी को, स्वॉलो की को उठाया और जो लेड का हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो भी उठाया और गॉड के पास ले गया। एंड यू नो गॉड कैन डू एनीथिंग। सो यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. So God, you know what did God decide? God ने फैसला किया कि वो जो स्वॉलो है उसको दोबारा जिंदा कर देगा और उसको अपने पैराडाइज में, स्वर्ग में किसी बाग में छोड़ देगा ताकि वो खुशी खुशी रह सके बिना मरे। कौन? स्वॉलो। और जो हैप्पी प्रिंस है वो हैप्पी प्रिंस के हार्ट को फिर जिंदा कर देगा, उसको हैप्पी प्रिंस की बॉडी में फिर फिट कर देगा और फिर हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो गॉड के पैराडाइज में रहेंगे हमेशा के लिए और गॉड को प्रेज करेंगे। सो यू सी हाउ ब्यूटीफुल द एंडिंग इज, that anything that is good, God does not let that good thing to die. Rather, God takes it to his paradise where he allows that good thing to live forever. So this was the wonderful story giving us hope, promise, and an assurance that God is always there. He is looking at us from his heaven and everything under him is good, happy and prosperous. That's it. We have finished the chapter. Thank you, beta.